Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. I request you to please be prepared to fall in love with this video because we are talking about live edge furniture, epoxy furniture. That is my favorite. So let's start with the introduction part. We'll show lots of units today. Hi, Let's Piyush. begin. Hi sir, How are you? I'm good sir. वेलकम बैक टू क्लैपट्रैप। Thank एक you, बार sir. फिर से आपका स्वागत है। वैसे तो बहुत सारे वीडियोस करते रहते हैं जी सर. ना। क्लैपट्रैप हैज़ बीन शूटिंग लाइक डे इन डे आउट, लाइक देयर इज नो टुमारो, बट कमिंग टू सी यू इज अ ट्रीट। Oh, I'm honored sir. Okay, we have not started rolling. We have not done the complete shoot yet, but trust me, I am overwhelmed. I'm so happy. Thank you so And the much. reason is, one of the reason is you, and other reason is resin epoxy live edge furniture is my favorite. Oh great sir. Okay, we have done a video with you earlier. जी sir. We'll talk about that. It was a really good video और response was so amazing and the clients were really happy. I was really happy to get so much of respect from them, and I always try to give new things and fulfill the demands or of the- expectations of the clients. So client. it was a really good video and I loved it. Everyone loved us. All right, so there's a transformation. Ji, We'll sir. talk about the company profile as well, but we'll talk about this transition. We are at the same place. You remember, like 1.5 years ago, we were standing right here. Exactly, right Same here. tree, same place. Yes. But there's Same tree. difference बहुत ज़्यादा लोगों ने appreciate किया था this tree. So with a lot of greenery. Yeah. All right. Basically, I'm really passionate about these things. I'm passionate about experimenting with new things and trying difficult things that people think that ये इंडिया में तो हो ही नहीं सकता. And I hate that question and that answer, that comment. And I always try to create as much new and good things as much possible. I totally simulate your feelings because of. Let's define live edge furniture quickly. For me, live edge furniture is untouched wood. Basically, it is the only thing that the touching that should be done is that it should be worth using. Like if we do not touch the edges of the tree, basically there should be no cuts in the tree. Like just look at this one. This one has the natural beauty, the natural formation of the wood. We have not touched anything. We just removed the barks and anything that is injurious or Sharp edges. Yeah, sharp edges. So basically we have smoothened the edges, and that is how live edge furniture is. Okay, so any raw form of wood made smooth, Made just smooth, for yeah. your safety and security. Yeah. It's live edge. Is live edge. Okay. Basically, this one is like made by nature. The things that are created by nature, they are absolutely without any fault, and it is very creative and it is very beautiful in visualizing it. ओके, लाइव एज फर्नीचर। अब थोड़ा हिंदी में भी बात करते जाएंगे साथ में, क्योंकि कुछ लोग हैं जो हिंदी में सीखना sure. जानना चाहेंगे। लाइव एज रॉ वुड का जब हम एक स्लाइस कर लेते हैं, अलग अलग होता है। आप ट्री को या तो आप Horizontally or vertically कट कर काटते सकते हैं. हैं, Yeah. तो अलग अलग पीसेज में या तो चिप्स निकलते हैं या प्लैंक्स निकलते हैं। या एग्जैक्टली सर, जो राउंड जैसे इनको हम बोलते हैं कुकीज, Okay, चिप्स कह सकते हैं, या एक परफेक्ट वर्ड जो वेस्टर्न कंट्रीज में यूज हो रहा है, दीज आर नोन एज कुकी टेबल्स. ओके, या और जी, और जो एक होता है स्लैब फॉर्म होता है, उसमें जो प्लैंक्स जो निकलते हैं बेसिकली उनको हम लाइव एज के स्लैब देते हैं, जो कि हम आगे वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है, दिस इज वन. Yeah. इनसे बनने वाले फर्नीचर जो यूनिट जो होते हैं, दे कैन बी एनीथिंग. यू कैन मेक पैक टेबल, साइड टेबल, सेंटर टेबल. काउंटर टेबल्स, बार टॉप्स में दीज आर गेटिंग रियली फेमस. बार टॉप्स में बहुत सारे बार्स, या लोग जो आज घर में लाइक बहुत एक कॉर्नर जैसे बनना स्टार्ट हो गया बार टॉप्स का, बार काउंटर का. सो बेसिकली छोटे या बड़े बार काउंटर्स जो है लाइव एज में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और ट्रेंडिंग Okay. आज की डेट में. Yeah. All right. And you have done a wonderful job. You have Thank you, created a door as well. Sorry? I have seen a door. Yes, you have. Yes, that was one of my finest projects, I would say. Okay. And I thank you have for seen appreciating one that. of- I have seen one of the doors created by you Yes, with the help yes, of epoxy. Yeah. I mean, unfortunately, we don't have a picture. You have a picture of it? I'll have to search my gallery for that. All right. Yeah. Now coming back to the making part of it. Yes, yes. Once you have decided what do you want to create out of live edge furniture, you place the wood and then you use your lot of resin. So just tell us how, particularly this one, how is it made? For example, this one does not have any of the cavities. This is a plain solid plank. So basically, we smoothen the slabs. Take this as an example. Yeah, so there was a cavity in the center, and we have filled it with the teal green resin. And first we fill it, then we make it even. The whole slab has to be very even and flat.
Okay. If there are unevenness or in terms of the surface, there should be no unevenness. It should be very flat, and then we polish it according to the requirement of the client. That if they want high gloss, then I give it high gloss. If you pan the camera here, this side. This is the high gloss finish. Yeah, this is the high gloss finish, and the same piece of wood. These are taken from the same pieces, same tree. Okay. सो हाई ग्लॉस में जो है ऐसा दिखता है, और मैट में आप इसकी फिनिश देखेंगे या इसका कलर जो है वो इस तरह से दिखता है. ठीक है. Yeah. तो आपने हमको बताया कि विद कैविटी जहाँ पे आपको ये रेजिन और एपॉक्सी भरा हुआ है, कलर्ड भी हो सकता है, ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, कलर भी हो सकता है ना जी. उसके बाद में आपने इसको या तो हाई ग्लॉस करते हैं या मैट करते हैं, मैट फिनिश करते हैं. उससे पहला एक स्टेप जो है मैंने स्किप कर दिया, जो कि सबसे पहला और सबसे ज़रूरी है इन टर्म्स ऑफ लाइव एज फर्नीचर, वो की है कि इसका मॉइस्चर लेवल चेक करना. अच्छा. सो मार्केट में ना लोगों को मतलब पता नहीं होता, आम जनता को, कि लकड़ी के अंदर मॉइस्चर को किस तरह ट्रीट करना होता है. सो बेसिकली अब जनरली क्या हो रहा है मार्केट्स में, जो स्ट्रीट साइड लोग जो इनको बेच रहे हैं वो मॉइस्चर लेवल को उसको सुखाते नहीं है. बेसिकली लकड़ी को सुखाना बहुत बहुत ज़रूरी है. अगर लकड़ी में मॉइस्चर है तो वो 2 सीजन्स में फट जाएगा. फटेगा कैसे कि अंदर का मॉइस्चर जैसे गर्म होकर बाहर आएगा वो पेड़ को फाड़ देगा. सो जो स्लैब है उसमें क्रैक्स आ जाएंगे. सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास सीजनिंग चेम्बर की फैसिलिटी है. सो हम सबसे पहले उसको कट करके सीजनिंग चेम्बर में उसको सीजन करते हैं और उसके बाद लकड़ी को यूज़ करते हैं, सो दैट फर्दर मेजर क्रैक्स डेवलप ना हो. ये बहुत ज़्यादा एक नेसेसरी चीज़ है व्हेन इट कम्स टू लाइव एज फर्नीचर. इनफैक्ट कोई भी फर्नीचर जो कि विच इज़ मेड आउट ऑफ सॉलिड वुड, उसको हमेशा उसका मॉइस्चर लेवल जो है बहुत कम होना चाहिए. और शायद एक रीज़न ये भी है कि सॉलिड वुड का फर्नीचर धीरे धीरे मार्केट से आउट हो गया, क्योंकि वो उसके जॉइंट्स जो हैं वो खुल जाते थे. वो खुलने का रीज़न एक ही था कि उसमें मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता था. अगर प्रॉपर्ली ट्रीटेड कोई भी वुड होगी उससे हम फर्नीचर बनाएंगे ट्रीटेड इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर. अगर उसका मॉइस्चर 10-12% है तो आप फर्नीचर में उसे यूज़ कीजिए, वो बहुत अच्छा फर्नीचर बन सकता है. और ये एक एक बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है, चाहे वो लाइव एज वुड हो चाहे कोई भी वुड का फर्नीचर हो उसमें. ओके. अब बात करें सेकेंड पार्ट ऑफ इट, कि ये कोई भी आइडेंटिकल नहीं होते हैं, मतलब दे कैन लुक अलाइक बट दे कैन नॉट बी सेम, बिकॉज हर पीस ऑफ वुड इज डिफरेंट. हर पीस अपने आप में अलग होता है. जी सर. नाउ द सेकंड पार्ट इज द मटेरियल पार्ट. जो आप इसमें इंक्लूड करते हैं वो है इनके बेसेस या फिर स्ट्रक्चर्स जहाँ पे आप मेटल यूज करते हैं. जी सर. तो मोस्टली 3-4 तरह के फिनिश आते हैं, मसलन इंडस्ट्रियल फिनिश, वुडन बेस, or maybe high gloss. You have introduced something very extraordinarily beautiful. Yes. I always thought of experimenting with base. You have done that. We were thinking on the same lines. As discussed earlier, जैसा कस्टमर का डिमांड होता है ना, लाइक आई बिलीव आई ऑलवेज ट्राई टू फुलफिल ऑल द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर. Okay. कि उनके अकॉर्डिंगली क्या अच्छा लगता है. ठीक है, आई लव इंडस्ट्रियल फिनिश, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको इंडस्ट्रियल फिनिश नहीं है. ठीक है. आई लव मैट फिनिश, बहुत सारे लोग हैं शायद मैट फिनिश ना भी पसंद. सो अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, आई बिलीव मैं उनको जितनी रिक्वायरमेंट्स है फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ. ठीक है. अब क्योंकि ये रूटीन प्रैक्टिस नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, तो जो हमारे पास पीसेस अवेलेबल हैं वो हर एक की एक यूनिट होती है. जी सर. उसके सिमिलर छोटे छोटे बड़े आपके पास अवेलेबल होंगे. ये फर्नीचर यूनिट्स ये सारे के सारे कॉन्टेम्प्रेरी घर में बहुत खूबसूरत दिखाई देते हैं. इनको आप इनफैक्ट अगर कोई फ्यूजन में भी क्रिएट कर रहे हैं, आपने कोई एथनिक घर बना रहे हैं, वहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं. कैफ़ेज़, क्लब्स, बार, जिम, स्पा, हॉस्पिटल, होटल, स्कूल्स, कहीं भी आप इन फर्नीचर को इस्तेमाल कर सकते हैं. बिल्कुल. तमाम तरह की चीज़ें हम देखेंगे. एवरी सिंगल यूनिट इज़ यूनिक. You will have only one unit of it, so you have to book it right away. Exactly. Right? So we'll take a tour. और कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से वहाँ से आप बताएं. जी सर, हम सबसे पहला लाइव एज का सेक्शन ही कवर कर लेते हैं. ठीक है. और उसके बाद एपॉक्सी टेबल्स में जाएंगे. So सबसे पहले जो एक बहुत अच्छा पीस मैं दिखाना चाह रहा हूँ वो ये है. और ये बहुत बड़ा एक ट्री का जो है लॉग है. सो स्लैब है बेसिकली. सो इसके अगर आप एजेस वगैरह देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है, बहुत स्मूथ भी है. हम कोशिश करते हैं स्मूथ से स्मूथ रख सके, जितना हो सके उतना स्मूथ रखें. इसमें बहुत थोड़ा सा हमने टच दिया ब्लू रेजिन का, जो कि यहाँ और यहाँ डाला है. इसको हमने मिरर ग्लॉस फिनिश में डाला है. एक और बात इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इंटीरियर में यूज़ कर रहे हैं तो आप ग्लॉस या मैट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं. बट मेरी ऐसा एडवाइस है कि अगर आप इसे आउटडोर्स में यूज़ कर रहे हैं, प्रॉबेबली आपके परगोलाज में या टेरेस गार्डन्स में, सो वहाँ पे आपको मिरर ग्लॉस फिनिश, जो हाई ग्लॉस फिनिश है, वो ज़्यादा प्रेफरेबल होना चाहिए. बिकॉज ये ड्यूरेबिलिटी जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. ठीक है.
अभी हम बात कर रहे थे फिनिश की। हाँ जी। लेग्स तो यहाँ पे बता दें कि जी। ये जो ब्लैक कलर के होते हैं these जी, are ये called- ब्लैक वाली जो हमने लेग्स यूज़ की हैं ये पाउडर कोटेड लेग्स हैं जो कि एमएस के अंदर मटेरियल में यूज़ की हुई हैं। बहुत ही स्लीक और बहुत ज़्यादा स्लिम लेग्स को हमने यूज़ किया और हम कोशिश करते हैं कि बेस को ना जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखें, बिकॉज हमारा अट्रैक्शन जो है हमारा लाइव एज का टॉप है। ठीक है, इसी को हम इंडस्ट्रियल फिनिश कहते हैं क्योंकि इनका जो ओरिजिन है वो बेसिकली शट डाउन इंडस्ट्री से हुआ था। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल Industrial फिनिश, finish। राइट? जी। और ये क्योंकि रॉ एज होता है इसीलिए इसमें रॉ बेस इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज दोनों सेम नेचर के होते हैं। जी सर, Right? बिल्कुल। लेकिन अभी क्योंकि हाई ग्लॉस भी इंट्रोड्यूस हो गया वो भी हम बताएंगे। इनका आप प्राइस बताएंगे हमको? प्राइस ऑन डिमांड रहेगा। उसका रीज़न सिर्फ इतना सा है कि जो लाइव एज के पीसेस होते हैं ये अलग अलग सोर्सेज से आते हैं और इनके प्राइसेस जो होते हैं वेरी करते हैं। लाइव एज के 15,000 से लेके 30,000 या प्रॉब्लली 35 तक भी जाते हैं। ठीक है, एक रफ आइडिया हमको मिल गया। जी सर। दिस इज इंडस्ट्रियल फिनिश लेग्स विद दिस कॉल्ड द पिन लेग, या हेयर पिन लेग्स, बिल्कुल सर। ओके, एंड दिस इज मैट फिनिश। जी सर। कौन सा वुड है ये? शीशम वुड है सर। अच्छा, पहले वाला शीशम था। वो भी शीशम था। जी सर। ये हमने थर्ड फिनिश दिखाया है, right? जी सर। इसमें मतलब टॉप का फिनिश सेम है, लेग्स का फिनिश में आपने हाई ग्लॉस किया है। जी, ये मेटल के अंदर है और इसके अंदर गोल्ड कलर हो रखा है। इन मेटल ये स्लोप लेग्स बोलते हैं इनको, और ये सिर्फ लेग्स होती हैं और ये बहुत ज़्यादा आई मीन ईजी टू ट्रांसपोर्ट है क्योंकि ये सिंगल लेग्स होते हैं। मैं आगे एक पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगर फॉर एन एग्जांपल हमें ये स्लैब को अगर चेन्नई भेजना है सो इसके बेस को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत डिफिकल्टी आती है। लेकिन अगर यदि जो टॉप तो बहुत सेफली पहुंच जाता है, साथ में अगर ये वाला बेस हमें भेजना हो तो ये एक बॉक्स में पैक हो सकता है। सो ये बहुत इजी टू ट्रांसपोर्ट है और ये बहुत यूनिक और अच्छा लगता है। ये तो मेरे ख्याल से स्क्रू से लगे होते हैं। जी, स्क्रू से फिक्स किए होते हैं। ठीक है, डन। तो अब देख लें हमारे पास कौन कौन से टॉप अवेलेबल है। मेनली जो है यही चीज़ यूनिक होती है। जी सर, जी। ठीक है, ये क्या साइज का है? ये साइज जो है 3 फीट बाय 20 इंचेस है, 36 बाय 20। ये डबल ट्रंक वाला था? हाँ, ये डबल ट्रंक वाला एग्जैक्टली। एक और मैं आगे डबल ट्रंक वाला यूनिट दिखाता हूँ आपको। Okay. बहुत इंटरेस्टिंग है वो वाला। ये व्यूअर्स को बता दें कि ये बहुत यूनिक पीस है क्योंकि डबल ट्रंक है। ये नेचर बहुत कम क्रिएट करती है। दो ट्रीज आपस में कंबाइन हो गए। Exactly, sir. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ डबल ट्रंक वन एंड दिस इज वेरी वेरी रेयर, राइट? वेरी रेयर। ठीक है, दिस इज सिंगल ट्रंक। यस, मोस्टली सिंगल ट्रंक में ही आते हैं हमारे जी, पास। सर। ये भी देख लें क्या या आगे पहले ये हम वो नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग करेंगे। ठीक है जी। सो दिस इज अनदर यूनिट। सेम पीस को हमने दो कलर्स, दो फिनिश में दिया है। मैट फिनिश में इस तरह लगेगा और हाई ग्लॉस में इस तरह लगेगा। दोनों में आप देखेंगे तो एक में हमने गोल्डन लेग्स लगाई हैं, एक में रोज गोल्ड लगाई हैं। तो इन स्लोप लेग्स में दो कलर्स अवेलेबल हैं एज पर योर चॉइस। ओके जी। यहाँ पे आपने जो रिवर दिया है इसमें जो इसकी जी, सर। फिल की है, Exactly. उसमें आपने एक पैटर्न क्रिएट कर एक दिया है। या और ये पैटर्न क्रिएट करना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज ये एक यूनिकनेस प्रोवाइड करता है और एक मतलब एक इसका लुक जो है एक अलग से निकल कर आता है इस पैटर्न की वजह से। ठीक है। दूसरा अगर हम ये इसके ऊपर फोकस करें तो इस पीस के बारे में सबसे ज्यादा स्पेशल मुझे लगता है कि ये जो इसके जो चैनल्स बने होते हैं, ये चैनल्स जो होते हैं ना बहुत रेयर होते हैं। जनरली आप देखेंगे तो प्रॉपर ऐसा राउंड सा फील आ रहा होता है। जितने ज्यादा चैनल्स होंगे उतना ज्यादा उस पीस की यूनिकनेस बढ़ जाएगी। एग्जैक्टली जी, मतलब आई कैन इमेजिन द काइंड ऑफ ट्रंक दिस मस्ट हैव बीन। Exactly. कैसा रहा होगा ये, हाँ, करेक्ट है? बिल्कुल बहुत ज्यादा चैनल्स वाला ये ट्रंक रहा होगा। ये जैक फ्रूट के अंदर है और ये डबल ट्रंक वाला है। ओके। और इसका कलर इतना अच्छा लगता है मुझे बिकॉज इतना एक गोल्डनिश टोन जो इसके अंदर इफेक्ट आ रहा है वो बहुत ज्यादा सही लगता है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। Yeah, it बहुत is बहुत indeed. प्यारा है ये। इंडस्ट्रियल फिनिश में है ये, डबल ट्रंक का है ये। जी, मतलब बहुत रेयरली शायद पीयूष आपको मिलते होंगे जहाँ ये पे बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। ब्यूटीफुल कोलैबोरेशन ऑफ टू डिफरेंट ट्रीज जी सर, बिकमिंग लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर। Exactly, ऐसा sir. कुछ है साथ में। जी सर। बहुत रेयर होता होगा नेचर। बहुत ज्यादा रेयर है और रेयर होने का रीजन ही है कि वो जो एक स्टेम होती है जिसमें से दो ब्रांचेस निकलती हैं, तो बहुत कम होते हैं ऐसे पेड़ क्योंकि ये बहुत पुराने पेड़ होंगे। Okay. जो भी मैंने आपको पीसेस दिखाए हैं, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, जितना मोटा पेड़ होगा ना, अब सपोज करते हैं ये सपोज क्या ये एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो ये 33-34 इंचेस इसका डाया है। अगर किसी पेड़ को इतना मोटा होना है तो एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है। और ये बहुत ज्यादा रेयर होते हैं क्योंकि इतने, एक तो है कि गवर्नमेंट जो है मतलब इतने बड़े इतने पुराने पेड़ जो हैं कट नहीं सकते। ये जितने भी हम लोग जो स्लैब्स जो लॉग्स लेकर आ रहे हैं, ये या तो पेड़ मर चुके हैं या सूख चुके हैं और उसके बाद ही हम जो है इनको जो है फिनिश करते हैं, प्रोक्योर करके आते हैं। Okay. I think this is one of the most important points we should have raised in the beginning of the video because a lot of people must have thought about it now. They must have wasted a lot of energy
in writing in the comment section that एग्जैक्टली बहुत पहले भी बहुत हुआ था और सबको मैंने रिप्लाई यही किया था कि एक और छोटी सी बात बता दूं, एक बार हम ना कैमरा उधर लेकर चलते हैं जी। डू यू सी दिस कैविटी? ये कैविटी जो है किसी जो भी डिसीज्ड पेड़ होगा ना जिसमें जो बीमारी हो चुकी है उसकी वजह से सेंटर में से ऐसी डिसीज होती है कि सेंटर में से पेड़ को खा जाता है। तो ये मैंने कैविटी नहीं बनाई, ये मदर नेचर ने ही कैविटी बनाई है। करेक्ट है। और उसके बाद ये पेड़ जो है खत्म हो चुका था, गिर गया था, उसके बाद जाके जो हमने प्रोक्योर किया और उसके बाद उसको हमने एक अच्छी तरह से फिल किया और इट एक्चुअली एक लाइफ खत्म हुई बट दूसरी लाइफ जो है एक तरह से स्टार्ट भी हो गई। ओके कूल। सो हमने दूसरी लाइफ कैसे दिया? एज अ पीस ऑफ फर्नीचर हमने इसको दिया। राइट। सो आई थिंक वेरी वैलिड एंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने हमारे व्यूअर्स को बता दिया कि ऑल दीज वुड्स, ऑल दीज पीसेज आर एक्चुअली सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट एंड they were the dead trees. Yeah, they were dead trees. Okay. This is Or another one. not only dead but they were actually like kind of at least 100 years old. Okay. क्योंकि इतना मोटा पेड़ होना उसके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ, आपने कभी पढ़ा होगा कि रिंग्स को अगर आप काउंट करते हो तो उसके बाद पता चलता है कि उसकी लाइफ क्या है, उसकी एज पता चल जाती है। सो बहुत इजीली जो है ये 100 रिंग्स होंगी इसमें। सो ये 100 साल तो पुराना है ही, इतना मोटा होने का मतलब तभी ये पता चल इतने बड़े पीसेस निकल पाते हैं। ठीक है। lot of people those who believe this deforestation is happening because of this is wrong. That is wrong. हमारे ट्रेंड में नहीं है, एटलीस्ट लाइवेज में जो हम प्रोक्योर कर रहे हैं उसमें तो नहीं है। हाँ, ये नहीं भी होता है ये, क्योंकि ये ट्रीज हम सहारनपुर भी हमने विजिट किया है, वहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से वो होते हैं, प्रोक्योर किए जाते हैं। इस बीच हमने बहुत सारी यूनिट्स दिखा दी है जब हम आपसे बात कर रहे थे। ये भी डबल में है? हाँ, डबल ब्रांच वाला ये। अच्छा, ये थोड़ा डार्कर शेड में या उसी का प्लैंक है? ये जो आपने इनिशियली देखा था उसी का प्लैंक है ये, और डार्कर शेड में है। जितना डार्क होता है उतना ज़्यादा वुड जो है ड्यूरेबल और स्ट्रांग होता है। ठीक है, डन। एक यहाँ पे हमारे पास और भी है, ये भी ये देख लेते हैं हम। नाउ अनदर इंटरेस्टिंग पीस। यस सर, राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। माय फेवरेट। ओ ग्रेट। आपका भी फेवरेट है? मेरा भी फेवरेट है सर। अच्छा, टेल मी अबाउट दिस। ये पीस जो है बेसिकली एक 7 फीट लॉन्ग स्लैब था। सो इसकी जो एक स्पेशलिटी है वो ये है, एक तो इसके कलर्स, इसमें हमने कोई भी स्टेनिंग नहीं की, ये मैट फिनिश के अंदर है। कैविटीज़ जो हैं हमने ग्रीन रेजिन से कंप्लीट करी थी। और एक और इंटरेस्टिंग बात अगर आप देखेंगे तो इसका लाइवेज बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप इसको साइड से एक बार ही कवर करेंगे यहाँ पे, ये इधर ये जो जा रहा है ग्रेन जैसा, यहाँ से चल के वाटरफॉल इफेक्ट दे रहा है एक तरह से, कि जो ग्रेन ऊपर जा रहा था वही ग्रेन जो है नीचे जा रहा है। सो बेस्ट पार्ट अबाउट द स्लैब इज कि दिस टेबल इज कि इसको बहुत एक्यूरेटली हमने मैच करके ही नीचे बिठाया हुआ है। ओके, सो आपका एक बुक मैच होता है इसमें, एट द सेम टाइम इसकी जो नेचुरली, क्या आपने इसको बर्न किया है? नहीं, ये बर्न नहीं है, ये नेचुरल इफेक्ट है, जो वुड का नेचुरल इफेक्ट है। अच्छा, वो नेचुरल इफेक्ट है। उसमें जितने भी लूज पार्टिकल्स थे हमने सबको हटा दिया और उसके बाद उसके अंदर ये इफेक्ट जो मैट फिनिश हुई हमारी, वो मैट फिनिश डाली है। दिस इज वेरी नाइस। बेसिकली एक और चीज, अगर इसका रियल आइडिया हमें लेना हो कि ये हमने किस तरह से बनाया था, सो अगर आप कैमरा इधर इस वाले एंगल पे पॉइंट करोगे, श्योर। सो ये जो बेसिकली स्लैब जो था सेम लॉग से उस टेबल को इसी स्लैब से बनाया है। सो बेसिकली इतना लंबा स्लैब था और उसको हमने यहाँ से कट किया, फिर ये नीचे वाटरफॉल की तरह चला गया। सो इस स्लैब को, जो इस तरह के स्लैब्स हैं बेसिकली बार टॉप्स में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कई लोग बाथरूम की वैनिटीज़ वगैरह में भी इनको यूज़ करते हैं। स्टडी टेबल्स की तरह बहुत यूज़ किया है। जो हमने लास्ट टेबल अभी कवर किया वो मेरा काउंटर टेबल है। सो एज अ काउंटर टेबल भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव ये हो सकता है किसी शोरूम का या किसी ऑफिस का वर्क स्टेशन, किसी ऑफिस का डिजाइनर के वर्क स्टेशंस होते हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फॉर्म ऑफ टेबल है। अच्छा, ये रॉ है? ये रॉ है, अनफिनिश्ड है, इसमें कोई भी हमने कलर या कोई भी पॉलिश नहीं कर रखी। ये देखिए, ये सब देख रहे हैं ना, ये ओरिजिनल। एग्जैक्टली, ये ओरिजिनल जो ऐसा ही था, इसको पॉलिश किया जब हमने तो वैसा बन गया। एक और चीज़ मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि हम लोग किसी भी तरह की स्टेनिंग जो है स्लैब के ऊपर नहीं करते। अच्छा, हम लोग जो नेचुरल कलर्स ऑफ द वुड है उसी जो नेचुरली निकल कर आएगा, हम नेचुरल पॉलिश करते हैं बेसिकली। सो जो इतना डार्क आपको वो वाला फिनिश देखा, बेसिकली ये जो है इस तरह का ही था और उसके बाद जो है हमने फिनिश किया तो वैसा लुक आया उसका। ओके, देयर इज अ क्वेश्चन नाउ, एंड जनरली हाई ग्लॉस जितने भी हैं वो छोटे यूनिट अच्छे दिखते हैं। अगर आप किसी भी बड़े यूनिट को हाई ग्लॉस करेंगे तो मुझे लगता है वो बहुत शाइनी दिखाई देगा, तो उस पर एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए ना? What do you suggest? आई सजेस्ट कि जैसा लोगों का टेस्ट है उसके अकॉर्डिंग मैं तो चलता हूँ बेसिकली। अब इफ पीपल से कि but I am expecting your opinion on this. Basically, इन माय ओपिनियन कि मैट तो सर हमेशा बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता ही दिखता है।
ओके जी और अगर बहुत लार्ज साइज यूनिट है हाँ। आई थिंक तो उसके ऊपर हाई ग्लॉस थोड़ा ज़्यादा ग्लॉस करेगा। जी, वो थोड़ा ज़्यादा ग्लॉस करेगा। ओके उसको मैट फिनिश में मैट फिनिश में हमें लेना तो ज़्यादा अच्छा जी होगा। सर जी। ठीक है। टॉकिंग अबाउट वर्क स्टेशन, एक वर्क स्टेशन और कवर कर लेते जी। हैं। वो ये वर्क स्टेशन है, वेरी सिंपल वेरी एलिगेंट। इसमें हमने शीशम के ही लेग्स दे रखे हैं। लेट्स नॉट लिमिट दिस कैन बी यूज्ड एज अ डाइनिंग टेबल एज वेल। हाँ, इट कैन बी यूज्ड एज अ डाइनिंग टेबल, 4 सीटर बहुत इजीली बन सकता है ये वाला। प्लीज गो अहेड। हाँ, सो अगेन ये हमने मैट फिनिश में ही किया है। अगेन ट्रू कलर्स ऑफ द वुड, इस पे हमने कोई भी ज़्यादा स्टेनिंग या छेड़छाड़ नहीं किए। रॉ फिनिश है एज का। अगेन लाइव एज की यही बेस्ट पार्ट होती है कि हम लोग आर्टिफिशियली इसके अंदर कुछ नहीं करते। जो है मदर नेचर ने बनाया, बस उसके लूज पार्टिकल्स जो हैं या उसका जो एज शार्प एजेस होंगे उसको हम स्मूथ कर देते हैं। एग्जैक्टली। ओके फॉर कंफर्ट, ताकि आपको किसी तरह का कोई इंजरी ना राइट। ठीक है। इसमें आपने इंडस्ट्रियल फिनिश नहीं है, इसमें आपने ट्राई किया वुडन लेग्स। जी, इसमें हमने वुडन लेग्स है। एक्चुअली दिस पीस इज सोल्ड और जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी उनको एक कंप्लीट सॉलिड वुड में चाहिए था। सो ही सेड बेसिकली इंडस्ट्रियल वाले ये जो शेप जो रहता है बेस का वो इस तरह का ही होता, बट क्लाइंट स्पेसिफिकली डिमांडेड कि उनको वुडन लेग्स चाहिए इस फिनिश के अंदर। आपको फील वही आ रही है, लेकिन है ये वुड में है ना? ये वुड में है। ठीक है। पिछली बार जब हमने वीडियो किया था तो काफ़ी सारा अप्रिशिएशन आपको मिला था। जी सर। हम कहाँ तक डिलीवर कर पाए पूरे इंडिया में? सर हमने हर जगह डिलीवर किया है। हमने साउथ में आप मानो कि कन्याकुमारी तक, रियली कन्याकुमारी में भी डिलीवर किया है और श्रीनगर में भी डिलीवर किया है। हमने सिलीगुड़ी तक डिलीवर किया है। ओके जी, सिलीगुड़ी में भी हमने डिलीवर अभी रिसेंटली किया था। उसके बाद ईटानगर जो है एक ऑर्डर है, मोस्ट लाइकली वो भी कंफर्म हो ही रहा है। ठीक है। सो ईस्ट में, वेस्ट में, टू द फारदेस्ट पॉइंट हमने किया है। नॉर्थ इंडिया डिड नॉट रिएक्ट वेरी पॉजिटिव? नॉर्थ इंडिया में तो बहुत अच्छा रिस्पांस आया। इनफैक्ट दिल्ली एनसीआर के अंदर तो लाइक लोग ढूंढ ही रहे थे कि इस तरह की चीज मिल जाए। सी ऑलरेडी अवेलेबल है, आई वोंट से कि मैं ही बना रहा हूँ, आई एम जस्ट अ टाइनी फिश। लेकिन मेरे पास जो रहेगा क्वालिटी प्रोडक्ट्स रहेंगे हमारे पास, बिकॉज मैं क्वालिटी के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ठीक है। बिकॉज व्हाई आई सेड नॉर्थ इंडिया, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट बिकॉज दिस इज माय फेवरेट unit. Live edge is my favorite. जी sir. When we introduced live edge enough in our home, it took us a lot of time to actually to absorb that this can be taken as a unit of furniture. This can be taken as a piece of art. Otherwise, most of the people, those who visitors coming to our place, ये कैसा है, ये टेढ़ा मेढ़ा है, raw है, इसका कुछ नहीं किया. All right, but thankfully we have a lot of youngsters, even geriatrics and old people also. They are little. जी, they are liking it. Old people are, you know, conventional people, they are liking it because of the grain pattern. Okay. जो जितने भी हमारे से एक जनरेशन 2 जनरेशन ऊपर है ना, उनको ग्रेन्स की ब्यूटी का ना बहुत ज़्यादा शौक होता है। करेक्ट है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो उनकी वजह से उन्होंने सबने बहुत एक्सेप्ट किया। और एक और बात कहूँगा कि जो लाइव एज की एक्सेप्टेंस है ना, सबसे ज़्यादा आई फील हैदराबाद के अंदर रही। अच्छा। हैदराबाद में हमें इतना अच्छा रिस्पांस मिला, लाइव एज का हो या एपॉक्सी टेबल्स का हो, जो कि हम फर्दर कवर करने वाले हैं। सो हैदराबाद में, कोलकाता में, बैंगलोर में बहुत ज़्यादा, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ यंग पीपल देयर एंड वहाँ से बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस मिला बेसिकली। ऑफ कोर्स दिल्ली में भी बहुत ज़्यादा मिला, बट कंपेयर टू दिल्ली, लाइव एज वाला जो है सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड जो था वो बैंगलोर और हैदराबाद में था। पुणे में बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस था। हाँ, because they get to see these kind of things in exactly on web series on Netflix and Amazon, right? Because you know how कुछ लोगों ने मुझे बताया वो आयरन मैन की एक मूवी थी, उसके अंदर एक टेबल था उनका। अच्छा जी, सो वो एक हमने कोशिश करी थी, स्टॉक टेबल था वो, बनाया था हमने एक छोटा सा। हाँ, कूल। मूवी इपॉक्सी वाला ही था वो भी। अच्छा। पहले हमने लाइव एज को बहुत ज़्यादा, लाइव एज वुड को कवर किया। अब जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो हम स्टार्ट करेंगे, विच इज़ इपॉक्सी प्रोडक्ट्स। सो इपॉक्सी प्रोडक्ट्स के अंदर हम लोग बेसिकली कोई भी फ्लैट सरफेस है वो करते हैं। हमारी जो है गिफ्टिंग रेंज हम लॉन्च कर रहे हैं। सो गिफ्टिंग रेंज में सबसे पहला प्रोडक्ट जो हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, दे आर दीज क्लॉक्स। सो ये क्लॉक्स, या इट इज़, इसके अंदर सबसे बेस्ट पार्ट जो है इन क्लॉक्स का वो ये रहता है कि अगेन जो नेचुरल ब्यूटी ऑफ द वुड है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है, और हमने अगेन नेचुरल ब्यूटी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। जो वुड हमने यूज़ किए हैं, टीक की वुड यूज़ किए हैं हम लोगों ने, और इसमें बहुत अच्छे ग्रेन पैटर्न्स होते हैं, और ये जो कैविटीज़ और नेचुरल क्रेविसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसके साथ हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ रेफरेंसेस डाले हैं, जैसे इसमें हमने रोमन नंबर्स डाले हैं। एक हमने ये, इसको हम पोकर क्लॉक बोलते हैं। ओके। बिकॉज वो ताश के पत्तों वाला सारे सिंबल्स हैं। बिकॉज यू हैव ऑल पोकर सिंबल्स। या एक ये है,
एक इसके अंदर आप देखेंगे सो हमने एक ये चेस वाला क्रिएट किया है। सो इसके अंदर हम बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और एक हमने एक करेंसी वाला भी क्रिएट किया है। Okay. आप एक इसको यहाँ पे फोकस करोगे तो ठीक है। सो ये बहुत अच्छे गिफ्टिंग ऑप्शंस हैं बिकॉज दीज आर वेरी यूनिक। आप इसमें अपनी ब्रांडिंग करवा सकते हैं, अपना नाम लिखवा सकते हैं, कंपनी के ब्रांड्स लिख सकते हैं हम इसमें, या प्रॉब्ली एक हस्बैंड अगर अपनी वाइफ को दे रहा है सो दे वो कपल्स के अपने नाम लिख सकते हैं। सो दीज आर वेरी गुड फॉर्म ऑफ गिफ्ट्स। प्रॉब्ली वेडिंग गिफ्ट्स में बहुत अच्छा ये चल सकता है, दिवाली गिफ्ट्स में हमने बहुत ज़्यादा इसको सेल आउट किया था। ओके और जनरली ऐसा होता है ना, होटल के पीछे आपके पास बहुत सारी क्लॉक्स की जरूरत होती है। एग्जैक्टली, होटल्स में या इनफैक्ट कैफेज में या बिल्कुल बिल्कुल। इसका जो वो सेम चीज़ सेम अप्लाइज है, हम लोग बात कर रहे थे कि जो इसका रॉनेस है, जो इसका एजीनेस है, वही इसकी ब्यूटी है, वही इसकी ब्यूटी, राइट। तो वो जो भी स्पेसेस जहाँ पे आप थोड़ा सा तो रॉ फिनिश रखना चाहते हैं अपने इंटीरियर में, जहाँ पे आप चाहते हैं कि थोड़ा सा एजी रहे तो या कुछ यूनिक रहे, लाइक सी इपॉक्सी टेबल्स का ये मैं नहीं कह रहा, ये मेरा फीडबैक है क्लाइंट्स का कि ये ना कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स हैं रियली। लाइक लोग देखते हैं ना जैसे ही तो अच्छा ये इंडिया में भी बनता है और इतना ब्यूटीफुली बन रहा है, इतना परफेक्टली बन रहा है। सो एक लोगों को बहुत नया फील इसमें एक आता है। ठीक बात है। और हर मेरे ख्याल से लोगों को इसलिए भी अच्छा लगता है, या मुझे भी इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि primarily it's originated by nature. Yeah, it is originated by very limited interference. Exactly. Okay. और हमने क्या किया है कि जो नेचर की जो voids थे हमने खाली वो रेजिन से फिल कर दिया। हाँ, जो मैं बार बार लोगों को या अवेयर करता हूँ कि किसी भी रेजिन टेबल के अंदर ना जो लुक आनी चाहिए वो वुड की आनी चाहिए। लोग ना रेजिन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं और वुड को नहीं देते। आई फील इससे ऑपोजिट है, जो लुक आनी है वो किसी टेबल की वुड की आनी है, उसमें ग्रेन्स, उसके नॉट्स, उसके कलर्स किस तरह से हैं। बेसिकली फील जो है किसी टेबल का कैरेक्टर जो है उस चीज़ से डेवलप होगा। ठीक बात है जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। अभी हम क्या दिखाएंगे हमारे? अब हम साइड टेबल्स दिखाएंगे। Piyush is going to be super duper hit. Oh, great sir, thank you so much. Okay. आपने बोल दिया अब तो हो जाएगा। It's going to be super duper hit because there's something that you have and it's magical. Trust me, one of the best things I've ever seen in my life. Thank you so much. I'm so honored. बहुत अच्छा है ये, and you have immense blessings. You have blessing in opulence from Mother Nature. That's the reason you have these beautiful pieces with you. Yes. Sir. Otherwise, this was not possible, right? जी, Even sir, you बिल्कुल. can't do it unless Mother is blessing you with a lot of beautiful objects. Okay, so starting with side tables. Yes sir, साइड टेबल्स के साथ स्टार्ट करेंगे। जो साइड टेबल्स हम अभी आपको दिखा रहे हैं, दीज आर मेड इन टीक वुड एंड सम ऑफ देम आर मेड इन शीशम एज वेल। सो हम जो छोटे टेबल्स हैं वो टीक वुड के अंदर ज़्यादा डेवलप कर रहे हैं आजकल। सो दिस इज अगेन अ 2x2 टेबल और एक छोटे कॉफ़ी टेबल की तरह भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हमने मेटालिक ब्लू फिनिश डाली, रेजिन यूज़ किया है। एंड इफ़ यू लुक एट द पैटर्न ऑफ द रिवर, इसके अंदर जो पेटल्स फॉर्म किए हैं हमने वो एक बहुत एक्यूरेटली एक आ रहे हैं कि एक होता है ना कि एक ब्लर्ड हो जाते हैं, वो ब्लर नहीं हो रहे इसके अंदर। और आप इसके ये एक नेचुरल कैविटी आई है या एक नेचुरल कैविटी इधर आई है, पीपल लव दिस एंड आई पर्सनली लव इट। वेरी नाइस। मैंने थोड़ा जो अभी आपको बताया ना कि मैंने जो अपना एक्सप्रेस किया हैप्पीनेस, जो मैंने अपनी खुशी आपको बताई थी, वो इन्हीं टेबल्स के लिए बताई थी बिकॉज मुझे ये सारे के सारे यूनिट्स बहुत अच्छे लगे, बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छे थे ये। एंड टॉक अबाउट दिस, आई मे लाइक इट विद हाई ग्लॉस है तो आप हाई ग्लॉस ले लीजिए, बट अदरवाइज आई वुड लव इट विद इंडस्ट्रियल फिनिश। अपना सबका अपना टेस्ट है, सबका अपना टेस्ट है, राइट। और इसको हम एक और चीज़ है, हम बेस बहुत कस्टमाइज कहते हैं, आई मीन रखते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि इस टेबल को आपको इसी बेस के साथ परचेस करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इसके साथ वुडन बेस लगाना है, हम वुडन बेस भी दे देंगे। इसके साथ हम मेटल के अंदर यूज करना चाह रहे हैं, मेटल में जा सकते हैं। एनी बेस वी कैन प्रोवाइड। ठीक है, नेक्स्ट लेवल एक और ऊपर जाएंगे, इससे भी अच्छी चीज दिखाएंगे अभी हम। जी सर, एक से बढ़ के एक है ये। दिस इज वेरी नाइस। इसको आप ना स्टिक से करते हैं कलर। जी सर, स्टिक से करते हैं और इसका एक पर्टिकुलर टाइम, एक बहुत शॉर्ट स्पैन का एक टाइम मिलता है जिसमें हम ये पेटल जो है क्रिएट कर सकते हैं। और अगर वो टाइम निकल जाता है तो हम बना नहीं पाएंगे उसको, हार्ड हो जाता है वो, बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, ये बहुत क्विकली ऑक्सीडाइज होके, मतलब क्या कहते हैं इसको, एयर एक्सपोजर में हार्ड हो जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, फिर एक बार हीट निकलना स्टार्ट होती है तो वो एकदम से ही हार्ड हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, आप इसमें कौन कौन से कलर्स की रिवर बना पाते हैं? ब्लू है, ट्रांसपेरेंट, जिसके इसके अंदर देखिए अगर मेटालिक्स हैं तो मेटालिक में मेटालिक ब्लू है, मेटालिक रेड है, मेटालिक ग्रीन है, मेटालिक ब्लैक है, और भी जो बेसिक कलर्स हैं वो सारे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है।
खूब आज हम एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को शूट करते समय क्योंकि अपना फेवरेट सेक्शन है ये लाइव एज का। देयर आर 2 यूनिट्स और कोशिश करेंगे हम अपने घर में किसी तरह से इनको अकोमोडेट कर लें। Great, sir. आई वुड सी इफ आई हैव अ स्पेस, आई वुड लाइक टू बाय वन। दिस इज द नेक्स्ट वन। इनकी प्राइस रेंज तो बता दें हमारे व्यूअर्स को। प्राइस रेंज एक बारी मैं लास्ट में थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे हम। ठीक है, इनका कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताते हैं। नाउ 2 शो स्टॉपर्स, my favorite, both of them are my favorite, especially this one. You have played with a little bit of the color. Yes, in this we have put this sap green color and this is transparent one और teak के साथ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन ये निकल कर आया, so we made this. इस wood के साथ आप देखोगे तो क्या डिफरेंट है वो इसके नॉट्स हैं, जो इसका जो लाइव एज का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कंपेयर टू दिस वन। इसमें हमने सिंपल स्लैब्स यूज़ किए थे और इसके अंदर हमने पर्टिकुलर नॉट वाली वुड यूज़ की है। ठीक है, एंड दिस वन इज ट्रांसपेरेंट, दैट वन वाज ओपेक। ऑलराइट, जब इसको आप फ्रेम करते हैं ना पीयूष जी, तो ये आपका प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कभी आप इसमें छोटे छोटे पीसेस और भी रख देते हैं बीच में जब आपके पास एक्स्ट्रा होते हैं, बट इसमें ना आपने अच्छा क्या नहीं रखा है क्योंकि रिवर की नीटनेस बहुत अच्छी है इसमें। एग्जैक्टली सर, देखो ये दोनों या ये 4 पीस यूज किए ना, ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसे आप ये देख रहे हो, ये बाहर है तो यहाँ पे ये अंदर हो गया, यहाँ पे ये बाहर है तो यहाँ पे ये अंदर हो गया। बहुत ज्यादा टाइम जो है इसी चीज के अंदर लगता है। समटाइम्स इट टेक्स 1 आवर 2 आवर इसको प्लेस करने में। Okay. क्योंकि हर बारी में चेंज करता रहता हूँ और मेरे वर्कर्स होते हैं एक टाइम तो वो परेशान हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है इसको सेट करना, और जब एक बारी फिक्स हो जाता है दिमाग में, हाँ अब अच्छा लग रहा है, देन ओनली वी कट इट एंड वी प्लेस इट। अच्छा, सो यू कट लेटर, फर्स्ट यू प्लेस इट। हाँ ऑफ कोर्स आई प्लेस इट, उसके बाद एक टेम्पलेट रख के हम देखते हैं कि कैसा फील आ रहा है। और अब तो खैर थोड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है कि मतलब एक बारी देख के ही पता चल जाता है, बट स्टिल एक फ्रेम बनाकर उसमें एक बारी देखना पड़ता है कि कौन सा पीस अच्छा लग रहा है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी डाल दिया, एग्जैक्टली तब उसकी लुक ही नहीं निकल पर आएगी, तब वो एक खुशी आती ही नहीं है कि मतलब ये बहुत अच्छा एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहा है। करेक्ट, So, वो वो खुशी है। आपकी खैर आवाज में भी आज आप ओके, थोड़ा हम वॉल्यूम कंट्रोल करेंगे क्योंकि आपकी मेरी आवाज इस बार बहुत तेज रही बिकॉज ऑफ हैप्पीनेस, नथिंग एल्स। yeah. ऑलराइट, गोइंग टू द नेक्स्ट वन, माय फेवरेट वन, सेकंड वन। जी, वेरी ब्यूटीफुल। ये दिस गिव्स मी द काइंड ऑफ इंप्रेशन, इट्स लाइक लुक्स लाइक अ रिवर, प्रॉपर रिवर जो है इसके अंदर एक बहुत अच्छा क्रिएट हो रहा है। और इसके बाद इसकी जो अगेन जो मेरा फेवरेट ग्रेन पैटर्न हुआ, या ये जो कर्व्स इसमें से निकल कर आए हैं वो हुआ, दिस इज रियली नाइस, वेरी नाइस। दिस हैज कम आउट वेरी वेल। दिस इज टेकन फ्रॉम द सेम प्लैंक और मस्ट बी टू? ये दोनों सेम प्लैंक्स थे, तभी उसके कलर्स जो हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अच्छा, तो यू जस्ट स्लाइस देम इन बिटवीन, जस्ट बिल्कुल, टू जी यूज सर। इट इन द रिवर्स ऑर्डर, Yes, राइट? yes. दैट्स हाउ यू मेक इट। जी सर, जी। Okay. A lot of people try to do with play with transparent one, and a lot of people believe that transparent in India is if UV exposed, the transparent becomes little palish. Yes, होता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट आ रही है तो हो सकता है हो जाए, बट अगेन उसको एक तरह से बैलेंस करने के लिए हम जरा सा कलर डालते हैं। ठीक है, डन। Where are we going now? अब सेंटर टेबल्स। ठीक है, all right. So center tables. जी सर, सेंटर टेबल है ये, एक 5 फुट का अच्छा बड़ा सेंटर टेबल है। और इस टेबल की स्पेशलिटी क्या है कि जनरली आपने देखा होगा ना कि पूरा टेबल एपॉक्सी वाला वो हाई ग्लॉस होता है। अब इसमें बेस्ट पार्ट या मेरा फेवरेट पार्ट क्या है कि जो वुड है वो बेसिकली मैट है, लेकिन जो रेजन है वो सी थ्रू है, एब्सोल्युटली ट्रांसपेरेंट। तो जनरली लोग ट्रांसपेरेंसी कैसे लाते हैं, उसके ऊपर हाई ग्लॉस करके रेजन को ट्रांसपेरेंट बनाते हैं, लेकिन हमारा डिफरेंट कहाँ से है कि ये वुड है और ये रेजन है, रेजन सी थ्रू है जबकि वुड पे मैट है। आप ऐसा क्लियरली देख सकते हो कि जो नीचे हमने पैकेट रखा है अमेजोन का, वो एकदम क्लियरली आपको विजिबल है। सो दिस शोज द ट्रांसपेरेंसी कि बिल्कुल ग्लास लाइक इफेक्ट जो है हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है जी, अब एक और टेबल हम डिस्कस करते हैं। गिव मी 30 सेकंड, आई ऑलवेज ask for 30 seconds. I love that. ओके, लेट मी टेल यू व्हाई। फर्स्ट ऑफ ऑल एपॉक्सी ना, इसमें 2 चीज़ें मुझे अच्छी लगी। जनरली लाइव एज हैज़ गॉट दीज चैनल्स एंड कैविटीज एंड रिवर्स दैट कम्स इन द सेंटर, बट एट द सेम टाइम यू हैव स्ट्रेट लाइन ऑल्सो इन दिस। दिस इज परफेक्टली स्ट्रेट लाइन। ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन है यहाँ पे। जी सर। दिस हैज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ लाइव एज curvaceous nature of mother earth, at the same time you have these straight lines as well. Exactly. I like it for the rose gold base because this adds a lot of bling in it, because people use metal as a pop up in their home decor. I think I have taken more than 30 seconds, but let me go ahead.
ओके, आई लाइक दिस रिवर, वेरी नाइस लॉन्ग रिवर। इससे थोड़ा सा आपका टेबल और ज़्यादा बड़ा दिखता है। जी सर। एंड देन द एज पार्ट ऑफ इट, दिस Yeah. इज कंप्लीटली epoxy? यस, दिस इज कम्प्लीटली इपॉक्सी, जो पूरा एज है। दिस लुक्स लाइक लेड, दिस लुक्स लाइक अ ग्लास। या इट लुक्स लाइक ए ग्लास। और सबसे बेस्ट पार्ट ये कि जनरली ये फिनिश जो है बहुत इजीली लोग डेवलप नहीं कर पाते हैं, कि लकड़ी पे जो है पूरा मैट होता है जो एकदम नेचुरल फिनिश है, और रेजिन जो है प्रॉपर सी थ्रू है जो ग्लास लाइक रहता है। वेरी नाइस, वेरी इसका मेन अट्रैक्शन जो है इस टेबल का वो यही है। पीयूष, काफ़ी सारी चीज़ें इसके ऊपर भी आपकी डिपेंड करती हैं कि आपको पीस ऑफ वुड कैसा मिला है। हाँ। जिसमें आप देख रहे हैं ना, नीचे आपको ये देख रहे हैं, नीचे आपको जी, अच्छा जी। इसमें डेप्थ मिली अच्छी। जी सर, तो जी। ये एक ब्लैक का एक एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न क्रिएट कर रहा है ये। और वो मैंने नहीं किया है, हाँ, वो मदर नेचर ने किया है। नेचर का है वो। जी। एग्जैक्टली वहाँ पे भी वैसे ही है। Exactly, ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा ही है। राइट, ठीक है। चलो, वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू कवर अ नेस्ट टेबल। अब इस नेस्ट टेबल के अंदर आप देखेंगे ये टीक वुड के अंदर हमने क्रिएट किया है। Okay. और ऑलराइट, सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस नेस्ट ऑफ टेबल। यस सर। सो इस नेस्ट ऑफ टेबल के अंदर हमने जो है टीक वुड का यूज़ किया है। एक जनरली आप चाहें तो दोनों को हम मैट फिनिश में कर सकते हैं। जो ये वाला है कंप्लीट मैट है, ये वाला जो है मिक्स्ड फिनिश है, सी थ्रू है, इसमें ब्लैक ट्रांसपेरेंट सी हमने ब्लैक ट्रांसपेरेंट रेजिन डाला हुआ है। और ये वाला 3x3 का है, ये वाला 2.5x2 का टेबल है। इसके अंदर हमने जो लेग्स यूज़ किए हैं वो इंडस्ट्रियल लेग्स हैं, बहुत ही स्लीक और बहुत ही अच्छे फिनिश के अंदर। ओके, इंडस्ट्रियल फिनिश के लेग्स की थिकनेस भी अलग अलग वेरी करती जी, है, अलग-अलग आपके टेबल के साइज के ऊपर डिपेंड जी, करेंगे। जी, इसमें टीक वुड का है, 2 का है, आप चाहें तो सेम कलर का भी करा सकते हैं। जी, सेम कलर का भी करा सकते हैं, बिल्कुल। बट आई थिंक डिफरेंट कलर ज़्यादा अच्छा दिखाई देगा, हाँ बिल्कुल, right? 2 सेपरेट टेबल्स निकल कर आते हैं। और अगेन जो हमेशा हम लोग ध्यान रखते हैं, दीज स्लैब शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। ऐसा नहीं कि एक किस डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर ये बाहर निकल रहा है तो ये अंदर है, सो ये तभी रिवर का एक फॉर्म निकल कर आता है। हाँ, सो उस चीज़ का हम लोग ध्यान रखते नेचुरल हैं। रिवर जो है का जो फ्लो होता है, जी एग्जैक्टली दिस इज द वे इट शुड बी। जी, जी, sir, जी। ठीक है, डन। वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ। Yes, sir. नई यूनिक कॉन्सेप्ट बताइए। सो बेसिकली ये हम थोड़ा 3D कॉन्सेप्ट के अंदर हमने डाला है। 3D कॉन्सेप्ट इस तरह से कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो जो ग्रेन पैटर्न्स चल रहे हैं वो बिल्कुल कैरी ऑन हो रहे हैं, मतलब वो जो पैटर्न है उसका वो ब्रेक नहीं हो रहा है। दूसरी बात, अगर आप थोड़ा सा गौर से देखोगे इसको, कुछ लोगों को इसमें क्यूब दिखेगा। अब मुझे ज्योमेट्री बहुत पसंद है, सो मुझे क्यूब दिखता है। कुछ लोग नेचर लवर्स होते हैं तो उनको ये फ्लावर दिखेगा, राइट। अब मेरे वर्कर्स हैं, उनको स्वीट्स बहुत पसंद है, तो बोलते हैं भैया ये तो बर्फी वाली टेबल है, बिकॉज ये बर्फी वाली शेप है। सो 3D हम इसको इसलिए बोलते हैं बिकॉज 3-4 शेप्स जो है इसके अंदर दिखती हैं। इसको हमने शीशम वुड में मुझे फ्लोरल दिख रहा था। आई सॉ देम लाइक दे अपीयर्ड लाइक फ्लावर्स। सो बेसिकली यू आर अ नेचर लवर, आई एम अ ज्योमेट्री लवर, तो मुझे वो है ज्योमेट्रिकल क्यूब लग रहा था मुझे एस्टर फ्लावर का जो है इसमें शेप लगा था। इसमें आपने जब से मुझे क्यूब बोला तो मुझे क्यूब्स दिख रहे हैं। आप क्यूब्स दिख रहे होंगे आपको। Right. अब मैंने जब बर्फी बोला होगा तो शायद इंडिविजुअली आप एक सिंगल पीस को वेरी नाइस, बहुत अच्छा कॉम्पोजिशन है एंड लिटिल कॉम्प्लिकेटेड टू मेक इट बिकॉज ये आपको थोड़ा सा क्रिएट करने में जी, डिफिकल्ट होता है। वर्कमैनशिप इसके अंदर लगती है, थोड़ा टाइम टेकिंग होती है। जितनी टेबल्स हैं वो देखो, अगर किसी भी चीज़ को परफेक्टली मतलब एक अच्छी तरह से बनाना है तो इट टेक्स टाइम। सो टाइम तो खैर लगता है इसके अंदर। ठीक है, विद इंडस्ट्रियल फिनिश है ये। सर एक और बात, ये लकड़ी के अंदर हमने इंडस्ट्रियल फिनिश किया, ये है वुड। अच्छा, ये वुड है लेकिन इसको पॉलिश इस तरह से किया है कि ये इंडस्ट्रियल फिनिश लगे। कई लोगों को लकड़ी आई मीन ज़्यादा पसंद होती है, लेकिन फिनिश उनको इंडस्ट्री वाली ही चाहिए, जो ब्लैक वाली है। ओके, कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा करता है। सो इसको हमने वी हैव पॉलिश्ड इट लाइक इन अ मैट ब्लैक कलर, जो कि इंडस्ट्रियल कॉस्ट फिनिश। में व्हाट इज मोर एक्सपेंसिव और एमएस और एसएस? एमएस इज मोर एक्सपेंसिव। नहीं, एमएस थोड़ा सस्ता पड़ता है कंपेयर टू वुड, बिकॉज वुड में पॉलिश वाला हमें एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ऐड हो जाता है। ठीक है, मैट फिनिश है लेकिन ये मैट फिनिश है। ओके, गोइंग टू दिस वन, दिस इज लिटिल स्मोकी, बहुत अच्छा है ये। हाँ, स्मोकी ब्लैक कलर है इसके अंदर। इसमें हमने 3 लॉग्स को यूज कर 3 स्लैब्स को यूज करके इसको बनाया है। ओके, जनरली ये स्लैब्स एक ही ट्री से एक्वायर किए जाते हैं क्योंकि कलर मैच करना होता है, या अलग अलग भी हो जाते हैं? स्पीसीज सेम होती है, बट कभी कभी अलग भी हो सकता है, कभी कभी सेम भी हो सकता अच्छा, ये आपको जज करना पड़ता है कि दे आर कलर कोऑर्डिनेटेड। है। जी बिल्कुल, वो मेरी मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस पे बेस्ड रहता है। ठीक है, इसमें आपने टीक के लेग्स दिए हैं क्या? जी, इसके अंदर टीक के लेग्स दिए हैं जिसको हमने शीशम के कलर से मैच किया। दिस डेफिनेटली इज गोइंग टू बी लिटिल एक्सपेंसिव, माय नॉलेज सेज, क्योंकि इसमें जो लेग्स हैं ना वो कर्वेशियस हैं और जो स्मूथ एजेस आपने बनाए जी। हैं, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, इसको टाइम लगा होगा बनने बिल्कुल में। सर। आई डोंट नो द प्राइस, बट आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी लेग्स वाइज इज गोइंग टू बी लिटिल लाइक ऑन द हायर साइड, है ना? जी सर, थोड़ा सा। राइट, जी ठीक है, डन। बट आई लाइक द टॉप, बहुत अच्छा है, बहुत स्मोकी है ये। अच्छा पीयूष, एक चीज़ आपसे शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे इसके बारे में।
बहुत सारे लोग ना इसको ट्रांसपेरेंट में चाहते हैं। जब भी आप ट्रांसपेरेंट करते हैं तो आपके प्लैंक्स जो है वो एयर सस्पेंडेड लगते हैं, ऐसा लगता है कि देयर इज नो सपोर्ट टू इट, और वो पूरा ना एक स्टैंड अलोन मतलब इंडिपेंडेंटली स्टैंडिंग होते हैं वो। जी सर, वेरी नाइस, आई थिंक दिस इज वेरी नाइस। बिल्कुल सर, अदरवाइज दीस प्लैंक्स विल बी सो आइसोलेटेड। वो आइसोलेट लगे बिल्कुल, एक व्हाट डू यू से कैरेक्टर बिल्ड नहीं हो पाता, आई फील। करेक्ट जी। गोइंग टू द नेक्स्ट वन नाउ, अगेन वन मोर आवर फेवरेट। Yes, this Okay. one is again made in teak wood. And how many planks are used in this? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 planks. Okay. So बहुत ज़्यादा knots हैं इसके अंदर again. जो ये tapered look आ रहा है, it looks really, it builds a character of the table. हाँ, एक्चुअली जो टेपर्ड लुक की आप बात कर रहे हैं ना, ऐसा लगता है कि सबमर्ज्ड है वो। जी, submerged है रेजिन के अंदर। हाँ, रेजिन के अंदर सबमर्ज है, जैसे कोई स्टोन है, आप ओशन में है, हाँ। और वो पार्ट जो है वो बिल्कुल, submerged है। बिल्कुल सर, राइट। जी। फर्स्ट टाइम आपने यहाँ पे क्रोम का स्टैंड यूज किया जी, है, क्रोम का finish। स्टैंड इसमें हमने यूज़ किया है क्योंकि ब्लू के साथ आई फील ठीक है, एसएस के रोज गोल्ड और गोल्ड अच्छे लगते हैं, बट इस कलर के साथ आई फेल्ट कि क्रोम फिनिश ज़्यादा अच्छा हाँ, लगेगा, exactly। इसलिए मैंने क्रोम फिनिश इसमें यूज़ ठीक है। अगेन क्योंकि पूरा फोकस हमारा टॉप के ऊपर होता है, इसलिए बेस के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं रखते हैं हम लोग। जी जी जी। We'll check out some dining tables now. Yes, sir. Okay. Yes. All right. Now time to show some dining tables. यस सर। बताइए। सो ये डाइनिंग टेबल है, अगेन इसको हमने मैट फिनिश में किया है। सेंटर में हमने टील ग्रीन रिवर दी है, और इसमें एक जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है कि साइड्स में भी जो है हमने रेजिन डाला है, इस साइड पे भी डाला है, एज के ऊपर रेजिन है, पूरा आप ये एज कवर करेंगे तो ये रेजिन का ही बना हुआ है। Okay. एक वो कॉर्नर में भी हमने रेजिन का एक एज डाला हुआ है। तो जनरली ये लार्ज साइज यूनिट होता है, और रेजिन को लोग मानते हैं कि लिटिल वीक होता है ये, तो एक कॉर्नर पे डालने में इसकी स्ट्रेंथ में कोई प्रॉब्लम नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Okay. अगर लोगों को लगता है कि चिपिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इसको राउंड ओवर्स डालते हैं, सो दैट कोई शार्प ऑब्जेक्ट इसके ऊपर टकराए भी तो चिपिंग ना हो। ठीक है। सो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सी रेजिन व्हेन इट गेट्स कंप्लीटली सॉलिड, सो उसके बाद इट इज जस्ट लाइक मार्बल, ओके। स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा अच्छी होती है उसकी। ऑलराइट। साथ में हमने ये चेयर्स दी हैं, 2 नॉर्मल चेयर्स हैं, 4 नॉर्मल चेयर्स हैं, 2 हाई बैक चेयर्स इसके साथ डाली हैं। कलर कॉम्बिनेशन हमने मैच कराने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, लेकिन चेयर्स तो आप नहीं बनाते ना ये? नहीं, हम चेयर्स बनाते हैं, अच्छा। आई मीन अरेंज कर सकते हैं ओके, ठीक है। अलॉन्ग विद द टेबल्स। ऑलराइट। एंड इसमें भी आप अपने हिसाब से लेग्स का फिनिश, जैसे अभी आपने यहाँ पे टीक दिया हुआ है जी, इंडस्ट्रियल फिनिश चाहिए तो वो भी मिल जाएगा, सारी बन सकती राइट? है, बिल्कुल। ठीक है। अब वो देखते हैं जिसका हमने लास्ट वीडियो में, जी जी जिसका हमने सेंटर टेबल किया था। जी सर, ये हनीकॉम टेबल है, और आज की डेट में फर्नीचर इंडस्ट्री में हनीकॉम का जो पैटर्न है वो आई फील बहुत ज़्यादा इन है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। जो हनीकॉम की ये जो पीसेस होते हैं छोटे, इट गिव्स अ वेरी नेचुरल लुक, बिकॉज हनीकॉम वाला है, मधुमक्खी के छत्ते जैसा लगता है। इसके अंदर हमने टीक वुड यूज़ की है। अगेन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, इनके कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छा है। आई लव टीक वुड, मैं तो टीक वुड का फ़ैन हूँ रियली, मुझे टीक वुड से अच्छी कोई वुड लगती नहीं। एंड ऑल्सो पैन इंडिया ना सर, टीक वुड की एक्सेप्टेबिलिटी जो है शीशम से ज़्यादा है, आई फील दैट। ओके, इन टर्म्स ऑफ वेदर, वेदर भी और लोगों का टेस्ट भी। टीक वुड में जो है एक्चुअली क्या है, आप अगर साउथ इंडिया में भी जाओगे ना तो टीक वुड को सब जानते हैं, लेकिन शीशम को काफ़ी सारे अलग नाम से जानते हैं, या थोड़ा मैंने एक ऐसा फील किया जब कॉल्स आते हैं वहाँ से। सो टीक वुड की एक्सेप्टेबिलिटी हर जगह है, शीशम में शायद कभी साउथ में शायद प्रॉब्लम इतना ज़्यादा अवेयरनेस अभी नहीं है शीशम के रिगार्डिंग, बिकॉज शीशम जो है नॉर्थ इंडिया की वुड है। Okay, but our concern is basically about the grains in the look and yeah. Okay, so keeping that in mind, I think इनके टीक के जो पैटर्न्स होते हैं वो compared to शीशम ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़्यादा अच्छे होते हैं। कलर्स भी, जैसे आप ये बना रहे हैं हेक्सागन वाली है ये, तो इनमें आपको वेरिएशन अच्छा मिलता है। शीशम में जनरली एक ही पैटर्न, एक ही कलर्स के सारे आते हैं, है ना? जी सर। यहाँ पे आपको डार्क है, कुछ लाइट है, ये अगर आप सारे इवन रखेंगे तो शायद दिस मे नॉट अपीयर द वे। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही कहा सर आपने। एक एक ब्लॉक है, हर एक का इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं, ये सारे के सारे इंडिविजुअल ब्लॉक्स हैं, और हर एक का अपना एक नेचर है, एक नेचर, एक कैरेक्टर, एक क्लियर निकल कर आता है। राइट। And this design was used last time. I mean, you used this design on a center table. On a center table. This can be used on side table as well. This can be used as a door. सर जी, ये इकलौता ऐसा टेबल है जिसको हमने ना 15 इंच बाय 15 इंच का छोटा सा टेबल से लेके 8 फीट बाय 4 फीट का टेबल भी इसमें बनाया है। Okay. ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड है। सो एज अ डाइनिंग टेबल, एज अ सेंटर टेबल, पेट टेबल, कॉफी टेबल, साइड टेबल, ये पैटर्न सबके साथ बहुत अच्छा सूट करता है। And this can be used as a bar counter, table counter, workstation, everything that. शेल्फ्स की तरह भी यूज कर सकते हैं इसको। हाँ। मैंने इसमें स्टडी टेबल भी बनाया था। डोर भी बन सकता है। डोर भी बन सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल बन सकता है सर। चलिए ठीक है।
ओके पीयूष, सो टाइम टू रैप अप. राइट सर. ओके, प्राइस के बारे में आप बात कर रहे थे कि हम एंड ऑफ द वीडियो बताएंगे कि किस तरह से कैलकुलेट करें, तो कैसे करेंगे बताइए. सो प्राइस रेंज जो है 2500 पर स्क्वायर फीट से लेके 4000 पर स्क्वायर फीट तक रहता है. ये टेबल टॉप्स के प्राइस है. बेस जो है सेपरेट रहते हैं. इसके अंदर शिपिंग कॉस्ट जो है वो सेपरेट रहती है. जीएसटी सेपरेट रहता है. एक मतलब एक कॉमन जो होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगुलर होता है, वहाँ पे पर स्क्वायर फीट लेंथ एंड विड्थ के हिसाब से कैलकुलेट कर लेते हैं. लेकिन ये जो आपके लेफ्ट साइड में है और मेरी राइट हैंड साइड में, इनको कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये पर पीस होता है. इसकी रेंज जो होती है, अगर एक छोटे टेबल से बात करें तो 10,000 से लेके बड़े टेबल मतलब 30,000 तक रहता है. अच्छा, 10,000 to 30,000. Okay, so there are two types of, there are two ways to calculate. One Yes, is when you have straight line, when you have these kind of curvaceous Yes, things. sir. When you have straight line, then you can calculate you can multiply your length and width. And if you have these kind of units, you can click the picture, take a screenshot, send it to Piyushi, and he will answer the question about the price part. जी Okay? सर, बिल्कुल. Right? जी. एक और छोटी सी बात, एक इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ. Sure. कि हम लोग जो है पहले जो हमने जो नंबर्स जो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इट इज़ ऑन व्हाट्सएप ओनली. कॉल्स जो है हमारी टीम आपको करेगी. बिकॉज कई बार ये होता है कि मतलब आउट ऑफ द मतलब वर्किंग आवर्स से बाहर जो हैं लोग कॉल्स करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है. सो आप अपनी जो भी क्वेरीज या जो भी डिमांड्स हैं, आप मुझे प्लीज़ इस स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप कीजिएगा. हमारी टीम जो है विद इन 24 आवर्स आपको कॉल बैक करेगी. Oh, I didn't know this. What Piyushi is trying to tell us that the number flashing on the screen is not the calling number. This is just the WhatsApp number. So what you are supposed to do, just take a screenshot, send it Yes. back, and ask for the price. Yes, And yes. there'll be somebody calling you from your end, right? यस सर, बिल्कुल. Okay. Thank you very much. Thank you, It was sir, आप pleasure यहाँ पर आए, meeting you cover once किए. again. Yeah. And it was definitely a fun meeting. And Thank you, sir. we hope to see you very soon. Okay, great, Thank you sir. very much. Thanks a lot for making us so privileged. ओके सर, बाय.